حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس بلاہٹ پر حضرت ابراہیم خدا کی باتوں کو مانتے رہے۔ اپنے ملک، اپنے گھر اور اپنے لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آؤ میں تمہیں برکت بخشوں گا، اور میں تمہیں ایک بیٹا بخشوں گا، اور میں تم سے ایک بڑی قوم کو بناؤں گا، اور میں تمہیں تمام قوموں کے لیے برکت کا باعث بنا دوں گا۔ اور خدا نے کئی وعدے کیے، اور کئی سال اب گزر گئے۔ 3 سال گزر گئے، 4 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، اولاد نہیں ہوئی، 15 سال گزرے، 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے خیالات اب کیسے ہوں گے، ایک بار آپ غور کریں، اور وہ اپنے دل میں کس طرح سے ٹوٹ گئے ہوں گے، اس پر ایک غور کریں۔ اور ان کی بیوی کی عمر 85 سال، ان کی خود کی عمر 95 سال ہو چکی تھی، اور وہ ایسے حالاتوں میں پہنچ گئے تھے جہاں اولاد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی کئی سوال کرتی ہوں گی، اور ابھی حضرت ابراہیم جب اپنے کام سے واپس گھر لوٹتے ہیں تو ان کی بیوی اپنے تمبو کے باہر کھڑے ہو کر، اور جب حضرت ابراہیم چلے آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بڑی غور سے ان کو دیکھتی ہیں، کیا آپ سمجھے؟ اس تمبو کے باہر ہی وہ وہاں پر کھڑی ہو کر، اور حضرت ابراہیم جب آ رہے تھے اس وقت ان کو اس طرح دیکھنے سے، اور انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ شاید وہ اپنے من میں خیال کرنے لگے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چپ چاپ اندر چلے گئے ہوں۔ کس لیے؟ اور کیا ہوا اس وعدے کا؟ اور کیا ہوا وعدہ دینے والے اس خداوند کا؟ کئی بار عورتیں صرف نظروں سے باتیں کرتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ صرف نظروں سے دیکھنا کافی ہے۔ آپ کا شوہر کھڑا رہے گا، کہیں گے کہاں؟ اور کئی بار نظریں ہی انسان کو ختم کر دیتی ہیں، وہ بھی ایسے حالاتوں میں۔ اگر شوہر وعدہ کرے اور پھر وعدہ توڑ دے تو، اور شوہر کہے کہ میں کام کروں گا اور نہ کرے، یا ان باتوں کو لے کر وہ آناکانی کرے تو، اور شوہر سامنے جب آتا ہے آپ اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غائب ہو جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ نظروں میں وہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم کے من کے حالات اور ان کی بیوی کا من کا تناؤ، ان دونوں باتوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم کیسا محسوس کر رہے ہوں گے، ایک بار غور کریں۔ ابھی آپ غور سے سنیے، اب حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے وعدہ کیے ہوئے اب 24 سال بیت گئے، اور خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک بیٹا بخشوں گا، اور اس طرح سے وعدہ کر کے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مانو وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ 24 سال گزر چکے ہیں، اور 24 سالوں کے گزر جانے کے بعد پھر سے خدا نے حضرت ابراہیم کو باتیں کی، اور خدا نے کہا ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نے نظریں اٹھا کر کہا خدا، اور خدا کہتے کہ میں خدا یہوہ ہوں۔ آپ سنیے، اس جگہ پر مان لو میں ہوں اور خدا کہے ستیش کمار، میں کہوں گا کہیے خداون، اور آواز آئے کہ میں یہوہ خدا ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ تم کیا بڑبڑا رہے ہو؟ بڑبڑا نہیں رہا ہوں، ایسے ہی کچھ کہہ رہا ہوں۔ آپ بتائیے کیا ہے؟ میرے اور تمہارے بیچ کچھ نیاموں اور قاعدوں کو بنا کر، اور میں تمہیں بہتایت سے بڑھاتا رہوں گا۔ اتنا ہی ہے، اور کچھ؟ 24 سالوں تک خدا اپنے وعدے کو پورا نہ کرنے پر 24 سالوں کے بعد خدا پھر سے آ کر کہا ابراہیم، میں یہوہ خدا ہوں۔ اس طرح سے کہنے پر حضرت ابراہیم کا جواب کیا ہونا چاہیے، بتائیے؟ میں خدا یہوہ ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ایسا کہا کیا؟ میں میرے اور تمہارے بیچ میں اپنے عہدوں کو باندھ کر میں تمہیں بہتایت سے، اور میں تمہیں بہت ہی بڑھاؤں گا۔ بس فل اسٹاپ۔ جب حضرت ابراہیم ان باتوں کو سنا، تب حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم کا جواب کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ابراہیم،
मैं यहोवा खुदावन खुदा हूं और मैं तुम्हारी औलादों को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह से जब खुदावन खुदा ने फरमाया, हजरत अब्राहम ने गिरकर उनको सजदा किया। हजरत अब्राहम खुदा की बातों को सुनकर और वो सिजदे में गिर गए, वो सिजदे में गिर गए। क्या ये मुमकिन है? आप कहेंगे क्या ये मुमकिन है? और 24 सालों से खुदा ने जो वादा किया है उस औलाद को देने में देर करने पर, और इस तरह से देर करने पर खुदा कहता कि मैं फिर से तुम्हारी नस्लों को बढ़ाऊंगा। उस जगह पर अगर आप या मैं होते तो क्या खुदा को सजदा करते? क्या खुदा के पैरों पर हम मुंह के बल गिर सकेंगे? और अगर मेरे जैसा कोई हो तो ठीक है, खड़े होकर ही आपका शुक्रिया करता हूं, अब आपसे कोई काम नहीं। आपको मुझसे अब कोई काम नहीं। लेकिन हजरत इब्राहिम में दिखाई देने वाली वो बातें कौन सी हैं आप जानते हैं? शुक्राना, शुक्र करते हुए जिंदगी जीना, कहना कि ऐ खुदा 99 साल का मैं हो चुका हूं और 89 सालों की मेरी बीवी हो चुकी है, हमें औलाद होने की कोई निशानी नजर नहीं आती, लेकिन ऐ खुदा आप हमें फिर दिखाई दिए हैं और आप ये कहते हैं कि मौजूदा करेंगे, और इससे ज्यादा हमें क्या होना चाहिए। और इस तरह से वो सजदे में चले गए, खुदावन खुदा के सामने वो सजदे में आ गए। और इन बातों को देखकर खुदावन खुदा का दिल बड़ा खुश हुआ। हजरत अब्राहम ईमान में कितने मजबूत हैं और कितना ज्यादा वो अपने जीवन से शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं बात करते वक्त में मेरी बात की खिलाफत करके बस खुदावन खुदा आपने जो कहा बस बहुत हो गया, मेरे मुल्क में मैं था, आपने मुझे बुलाहट दी, मैं आया, आपने कहा घर वालों को छोड़ दो, मैं घर के लोगों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ो, मैंने सबको छोड़ दिया, सब छोड़ के मेरे पीछे चले आओ, वो छोड़कर मैं आ गया। और आपने कहा कि मैं बेटा बख्शूंगा, मैं खुश हुआ। 1 साल हुए, 2 साल हुए, 5 साल हुए, हो गए 10 साल हो गए, 20 साल गुजर गए, और अब फिर से आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और मैं हाथ जोड़ता हूं, अब मुझसे कोई वादा ना करें। मैं समझता हूं ऐसा कहने के लिए 100% चांस थे। हजरत अब्राहम ऐसा कह सकते थे, नहीं मालूम क्यों हजरत अब्राहम 24 सालों तक आजमाइश होने के बाद खुदावंद कहता कि मैं तुम्हारी नस्लों को बढ़ाऊंगा, और सजदा करके, और ये वादा खुदावंद आपने किया है, मुझे ईमान है कि जरूर एक न एक दिन आप इसे पूरा करोगे, और ये आप पूरा करेंगे। खुदावंद मुझे ये भरोसा है। किस तरह का एक शुक्रिया से भरी हुई जिंदगी और किस तरह का किरदार हम हजरत अब्राहम का देखते हैं, रूहानियत से भरा हुआ। अजीज भाइयों और बहनों, आप दुआ कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, आप दुआ कर रहे हैं औलाद के लिए, और कई बार आप दुआ करते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, कई बार अपने प्रमोशन के लिए, और दुआ करते हैं अपनी वीज़ा मिलने के लिए, या फिर कई लोग ये दुआ करते हैं कि उनको तिजारत में बड़ा फ़ायदा होने पाए, और आप दुआ करते हैं कि आपकी जो तकलीफ़ात हैं या तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएं, लेकिन नहीं मालूम क्या होता है। और जब भी आप खुदा के कलाम को खोलते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ता है, तो एक से बढ़कर एक वादा खुदा आपको देता है। वादा तो खुदा कर रहा है, लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है। हाँ, खुदा ने कई वादे तो किए हैं, लेकिन उसने औलाद अभी तक नहीं बख्शी। आप खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन ना तो प्रमोशन होता है, ना आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। उस तरह से आपके बच्चों की उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन शादी के लिए कोई भी रिश्ता अभी नहीं मिल पा रहा है। और खुदा पर ईमान रखने वाले जो आप हैं, खुदा की बातों पर यकीन करने वाले, और यकीनन खुदा कुछ मौजज़ा करेगा, ये आपको लग तो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। और जो आप चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो नहीं मिलने, नहीं दिखने पर, और खुदा पर ईमान रखना क्या मुमकिन है? और आपका भरोसा खुदा पर रहेगा, क्या ये मुमकिन है? कितनी बार और जिस नौकरी को आप पाना चाहते थे, किसी दूसरे को मिल जाने पर कितनी बार ऐसा किया आपने कि खुदा के घर में आना आपने बंद कर दिया। कहते क्या खुदावंद खुदा ने, वो नौकरी मुझे मिली लेकिन मेरे पास वाले को मिल गई, और क्या हुआ खुदावंद, और हमारी बेटी की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है, कितने रिश्ते उसके आ चुके हैं और एक भी रिश्ता नहीं जमा, लेकिन पास में रहने वाली एक दूसरी लड़की जो कम उम्र की थी, एक ही रिश्ता आया और उसकी शादी जम गई। कहेंगे आप क्या हुआ खुदावंद, 10 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं लेकिन अभी भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला है,
اور ابھی 2 दिन पहले ही दूसरा एक शख्स आया, उसको प्रमोशन मिल गया। खुदावंद आपको क्या हुआ है? और बाइबल को हाथ में लेके पढ़ने का मन नहीं करता, टेलीविजन पर मसीह प्रोग्राम देखने का मन नहीं करता, और जब दुआ करने की याद आती है तो घुटने टेकने का मन नहीं करता। अरे क्यों? अब किसके लिए दुआ करना और किस लिए खुदावंद खुदा, किस लिए ये तमाम बातें करना है? कितनी बार जिन बरकतों को आप पाना चाहते हैं उनके मिलने में देर हो जाने से क्या आप खुदा से नाराज नहीं हुए? क्या दुआ में नाराज नहीं हुए? आप खुदा के कलीसिया से नाराज हुए? इसकी वजह खुदा की बरकतें जो उससे पहले आपने पाई थी उनके लिए आप शुक्रगुजारी ना करने की वजह से, और जिन बातों को आप चाहते हैं उनके ना मिलने से आप खुदा से नाराज हैं। लेकिन जो मिला है उसको लेकर क्या है? और एक काम से दूसरे काम के बीच आधे घंटे का वक्फा मिलता है, और इन्हीं दिनों में डॉक्टरों ने ये बता दिया, और इस तरह से हमेशा रोज गला फाड़कर बोलना ये आपके लिए ठीक नहीं है। और गले को थोड़ा आप आराम दें, ये डॉक्टरों ने मुझे बताया। और 1 हफ्ते तो मैंने बड़े धीमे से बातें की, और अब नहीं मालूम क्यों ये मामूली सा हो गया। और इस तरह से अब जोर जोर से बातें करना ये मेरे गले के लिए ठीक नहीं है। और इस तरह से बातें करने की वजह से ही मेरा गला 1 महीने से बिगड़ गया था, और जब मैं बात करता था वो आवाज नहीं आती थी, सिर्फ हवा बाहर निकलती थी। और ऐसे हालात से गुजरते वक्त में और मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ये आप लोग भी जानते हैं। और मैंने दोपहर में ये ख्याल किया कि 10 मिनट आराम करूं, और उस समय मैं बिस्तर पर लेट गया। और ऐसे झपकी लेने के वक्त में वहां पर एक बिस्किट रखा हुआ था, वो बिस्किट लेकर मैंने मुंह में रख लिया। और लेटे लेटे, और इस तरह से लेटे हुए खाने पर क्या होता है आप बताइए? ये गले में अटकना चाहिए या नहीं? ये अटकना चाहिए। लेकिन जब मैं उसको चबा रहा था, ये मेरी जबान क्या कर रही थी कि बिस्किट गले में ना अटके, बड़ी एहतियात से एक तरफ उसको इकट्ठा करते हुए, और दूसरी तरफ जो बिस्किट मैं खा रहा हूं उसको तभी के तभी दाएं बाएं दांतों की तरफ ले जाकर जीभ जो है उसको दबाने का काम करती है। और इस तरह से दबने के बाद मेरे ऊपर तरस खाने वाली मेरी जीभ ने चबाए हुए उस तमाम बिस्किट को मेरे गले के अंदर पहुंचा दिया। और खाना खाते वक्त में आपके चबाए गए उस खाने को आपकी जबान अंदर पहुंचाती है या कि नहीं? खाने को अच्छी तरह से निगलना हो रहा है या नहीं? एक बार आप ठहरिए। मान लो आपने जो चबाया है निगल ना सको और वो अटक जाए तो, और आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन निगल नहीं पा रहे हैं। अगर ये निगलने वाला जो काम है अगर बंद हो जाए तो फिर थोड़ा सा भी खाना अंदर नहीं जाएगा, और फिर ये जिस्म काम बिल्कुल नहीं करेगा, और सिर्फ आपके चबाने की देर है, फौरन ही हमारी जीभ आहिस्ता से उसे अंदर भेज देती है जो आपने चबाया है। उस खाने को आहिस्ता से अंदर भेजती है। अगर कभी जीभ रूठ जाए कि हमेशा इसको अंदर क्यों भेजना है, और ऐसा सोचकर वो रूठ जाए, क्या हालात होंगे बताइए? आप पानी पीते वक्त निगलने से ही अंदर जाएगा, और निगलना ना हो तो उस तरह से मुंह में आप ऊपर रखकर रोकिए, जब तक आप निगलेंगे नहीं वो अंदर नहीं पहुंचेगा। किस तरह से खुदा ने हमारे जिस्म को बनाया है, और इस तरह से खुदा ने कारीगरी से हमको बनाया। इस जिस्म में रहने वाले तमाम अज़ा अच्छी तरह से काम करने पर कई लोगों को परवाह नहीं है खुदा के दिए हुए इस जिस्म और उसके फजल बख्शने के लिए। एक 60 साल का बुजुर्ग शख्स उनको यूरिन में बड़ी परेशानी होने लगी, और कुछ भी जब नहीं हो रहा था तो बड़े परेशान हुए, और डॉक्टर साहब मुझे यूरिन नहीं हो रहा है, और वो परेशान होकर गवा गए। उन्होंने अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताई, और डॉक्टर ने जल्दी से कुछ इंजेक्शन और दवाइयों को लिखा। इंजेक्शन लगाया और दवाइयों को खाने के लिए कहा, और तुरंत बाथरूम में जाओ कहकर वो गए और फिर बाहर आ गए। बहुत अच्छा कहा। और अब डॉक्टर साहब ने बिल उनके हाथ में रख दिया, और जैसे बिल देखा 2000 रुपये। कितने रुपए? 2000 रुपये। उस बिल को देखकर उस बुजुर्ग शख्स ने एक बार आसमान की तरफ देखकर कहा, खुदा, अय खुदा, खुदाबन, खुदा तेरा शुक्र हो खुदाबन। उसने ऐसा कहा। अब डॉक्टर को गुस्सा आ गया, अरे तुम्हें यूरिन नहीं हो रहा था, मैंने इंजेक्शन लगाया, ऐसा करके तुम्हें मेरा शुक्र करना चाहिए, और मेरे ही सामने खुदा खुदा करके तुम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो, तुम कैसे अहमक इंसान हो। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब, एक बार यूरिन पास हो जाए इंजेक्शन लगाकर,
आपने 2000 का बिल थमा दिया, लेकिन खुदा ने 60 सालों तक मुझे तंदुरुस्त रखा, अच्छा रखा, एक भी बार बिल नहीं मांगा। वो क्या कहते हैं, इन 60 वर्षों में खुदा तूने मुझे भला चंगा और तंदुरुस्त रखा है, एक भी बार खुदा ने हाथ में बिल नहीं थमाया। अगर खुदा हाथ में बिल थमा देता तो आपको पता चलता। बिल चुकाओ और घर जाओ। और खुदा की उन भलाइयों को आप याद नहीं करते? खुदा ने जो जिंदगी आपको बख्शी है, क्या वो भलाई नहीं है? अब गौर से सुने, जिंदगी के 24 सालों में कोई जवाब ना मिलने पर भी, खुदा ने फिर से बातें करने पर कि हजरत इब्राहिम मैं तुम्हारी नस्लों को बढ़ाऊंगा, ये कहने पर आप उनके दिल की हालत को देखिए कि वो खुदा के कदमों में सिजदा कर दिए और खुदा के कदमों में सिजदा कर दिया। वजह एक शुक्रगुजारी की जिंदगी, शुक्राने वाली जिंदगी। आपकी जिंदगी में अगर आपकी दुआओं का जवाब मिलने में अगर देर हो रही हो, आप जो मांग रहे हैं और अगर वो आपको ना मिलता हो, अगर देर होती हो, तो आप खुदा पर बड़बड़ाइए मत, खुदा को कुछ बुरा मत कहिए। उस दिन बनी इस्राएल को 10 मौजज़े करके मिस्र देश में से और फ़िरौन के हाथों से अपने लोगों को छुड़ा लिया और मैं तुम्हें अहद के देश में ले जाऊंगा, ये कह के अहद बांधा। मिस्र देश में से निकल के आने वाले बनी इस्राएल अहद के उस मुल्क में जाने के लिए, उस देश में कदम रखने के लिए कितना वक्त लगेगा आप जानते हैं? लगभग 8 से 11 दिन का वक्त लगेगा। 8 से 11 दिन के वक्त में उन्हें कहां पर पहुंचना है? अहद किए हुए देश में। और कैसा मुल्क है वो? ऐसा मुल्क है जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और खुदा के अहद किए गए मुल्क में 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर पहुंचने वाले ये बने इस्राएल कौम पहुंच पाए क्या अहद किए हुए मुल्क में? अब 10 दिन बीत गए थे, ये नहीं पहुंचे। 10 हफ्ते बीत गए, नहीं पहुंचे। 10 महीने गुजर गए, नहीं पहुंचे। और 10 साल हो गए, उन्हें जहां पहुंचना था वो नहीं पहुंचे। क्या उसकी वजह परमेश्वर है? क्या इसकी वजह खुदा की कमजोरी है? नहीं। फिर बनी इस्राएल से खुदा का बुरा बर्ताव, उन्होंने हर बार खुदा से बुरा सलूक किया। उन्होंने बयावा में खुदा की आजमाइश की। उन्होंने अपनी जुबानों को खराब कर लिया और अपने अपने बदन को नापाक कर लिया। हर दिन उन्होंने खुदा को गुस्सा दिलाया और 10 दिन में पहुंचने वाले उस अहद के मुल्क में अभी नहीं पहुंच पाए। उन्हें जो बरकतें पाना था, मौजूजा मिलना था, उसमें देरी की वजह खुदा नहीं है। फिर लेकिन वो जो गलतियां करते आ रहे हैं और खुदा की हुक्मदूली जो वो कर रहे हैं, उनका बुरा सलूक और उनकी जिस्मानी हरकतें, और जिस अहद को पाना था, जिस अहद के मुल्क में उनको जाना था, वहां जा नहीं पाए। आपको जिंदगी में कब का नौकरी मिल जानी थी, बहुत पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, आपकी जिंदगी में बहुत पहले औलाद मिल जानी थी, और जिंदगी में आपने जो सोचा वो तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? खुदा जब भी आपको बरकत देने का मन बनाया और जो आपको नहीं करना था, उस गुनाह के कामों को करते हुए आप नजर आए होंगे। जिस गुनाहगार शख्स के साथ आपको नहीं रहना था, खुदा ने उस इंसान के साथ आपको देखा होगा। जिस तरह का सलूक आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा सलूक करते खुदा ने आपको देखा होगा। और खुदा आपको जब भी बरकत देने के लिए आया, आप हर बार ऐसे गलत हालातों में आप नजर आए होंगे। जिस जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए, आप उस जगह पर दिखे होंगे। जिस शख्स के साथ आपको खड़ा नहीं होना, आप वहां पर खड़े हुए होंगे। और जिन बातों में आपको नहीं जाना है, उन बातों में आप मुलब्बिस होंगे। और इसलिए हो सकता है खुदावन बिना बरकत दिए वापस गया हो। 24 सालों तक इंतजार करने के बाद पैदाइश की किताब 17वां बाब पहली आयत में खुदा ने क्या फरमाया आप जानते हैं? अब्राहम, मैं खुदा कादिरे मुतलक हूं, उतना ही है। मेरी हुजूरी में चलो और कामिल बनते जाओ। अब्राहम 24वां साल है उनके पुख्ता ईमान का। अब उनकी उम्र 99 साल की हो चुकी थी और खुदा आने वाले साल में उनको एक औलाद बख्शेगा। और वो वक्त आ चुका था कि खुदा अब अपने अहद को उनके साथ पूरा करे। और देने का वक्त आने पर खुदा ने हजरत अब्राहम से क्या फरमाया जानते हैं? अब्राहम, मेरी हुजूरी में कामिल बनते जाओ।
इसका मतलब क्या है? मैं अहद किए हुए काम को अब पूरा करने पर हूं और वो पूरा होने का वक्त आने पर खुदा कहते हैं, अब्राहम तुम मेरे सामने कामिल बनते जाओ। और खुदा उंगली उठाकर बताते हैं कि हजरत अब्राहम तुम कमियों के साथ मत जीना, गलत जिंदगी को तुम कभी मत जीना, क्योंकि मैंने जो अहद किया है मैं उसे पूरा करने पर हूं। तुम कामिल बनते जाओ। खुदा ने फरमाया मेरी हुजूरी में चलो और कामिल बनते जाओ। रास्तबाजी से किसी तरह इल्जाम लगाने का मौका कोई ना मिले। तुम जियो किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हें बरकत देने पर हूं। इसका कहने का मतलब क्या है? और खुदावन आपकी जिंदगी में मौजज़ा करना है तो, और खुदा आपकी जिंदगी में अपने अहद को पूरा करना है तो, इस तरह अहद को पूरा करने के वक्त को आ जाने पर खुदा आपको कामिल इंसान की शक्ल में देखना चाहता है। और खुदा ये उम्मीद रखता है कि आप रास्तबाजी से जिए, क्योंकि खुदा के अहद पूरा करने का वक्त अब आ जाने पर और आप में कोई गुनाह नहीं रहना है, गुनाह का काम भी नहीं होना है बिना किसी कमी के। आपको ऐसा नजर आना है ये खुदा की मर्जी है। और हो सकता है कई बार खुदा जब आपको बरकत देने के लिए आए, आपके अंदर गुनाह को देखा होगा, गुनाह के होते हुए कामों को देखा होगा, आपको गुनाह की आदतों में चलते हुए और गुनाह से भरे हुए कामों को करते हुए खुदा ने देखा होगा। इसलिए वादा पूरा करने वाला खुदावंद शायद वैसे ही चला गया होगा। और खुदा के चले जाने के बाद इल्जाम लगाने से अब क्या फायदा, और खुदा के जाने के बाद अब रोने से क्या फायदा। आज ये पहला सबक है। उस दिन जब हजरत अब्राहम को खुदा ने कुछ देना चाहा तो हजरत अब्राहम से क्या कहा जानते हैं? तुम कामिल बनते जाओ और मेरे सामने चलते रहो, बिना दाग, बिना धब्बे और बिना ऐब की जिंदगी को जियो। मैंने जो अहद किया है मैं उसे पूरा करने पर हूं। और हजरत अब्राहम उसी तरह की जिंदगी को जिए और वो कामिल बनते चले गए। रास्तबाजी की जिंदगी को उन्होंने जिया। अब अगला साल आया और हजरत अब्राहम के हाथों में एक बेटे को खुदा ने बख्श दिया। और खुदा ने जो मौजज़े हजरत अब्राहम की जिंदगी में किए वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में भी करे। ये कब मुमकिन है? तभी जबकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिएंगे, रास्तबाजी से और खराई से जिएंगे तो ही। इस तरह जीने के लिए, ऐसे चलने के लिए क्या आप एक फैसला करेंगे? क्या खुदावन मैं आपकी हुजूरी में चलूंगा, कामिल बनने के लिए मेरी मदद कीजिए और आपने जो वादा किया है उसको पाने के लिए इस तरह की जिंदगी मुझे बख्श दे। हम दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद खुदा, बड़े साफ तौर तरीके से अपने कलाम से बातें की, हम आपका शुक्र करते हैं। हजरत अब्राहम जब आप पर ईमान रखना लगभग नामुमकिन था, ऐसे वक्त में खुदावंद आप पर यकीन लाए और वो उनके रास्तबाजी बन गया। खुदावंद सिर्फ इसको कबूल करना ही नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी से उन बातों को दिखाने पर 99 साल की उम्र में भी उन बातों को अपनी जिंदगी से बताकर आपको खुश किया। और खुदावंद हजरत अब्राहम की मानिंद वो तसल्ली और वो उम्मीद की बातें, वो हलीमी की ज़िंदगी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी हमें भी दीजिए। और कई बातों में जो हमें मिलना था उसमें देर होने पर खुदावन हमने आपकी हुक्मदूली की, आपसे सवाल किया है। खुदावन हमने आपको परेशानी में डाला, हमें माफ़ कर दीजिए। और जो बातें हमें मिलनी थी उनके मिलने में देरी होने पर उसकी वजह हमारे अंदर रहने वाला गुनाह ही है और हमारी ही कमियां हैं, दुनियावी ज़िंदगी है। अब इस सच्चाई को जानकर हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं। आप हमारी कमियों को दूर कर दीजिए। आए खुदावन, मुझे, हमें और हम सबको उस बर्रे के खून से पाक और साफ होकर जिंदगी जीने का हक दीजिए। और जो वादा आपने हमसे किया है जल्दी उसको आप हमारी जिंदगी में पूरा कीजिए। मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.